हेलो एंड वेलकम टू टुडेस डिस्कशन ऑफ डेली न्यूज डाइजेस्ट एंड आज जो है 15 दिसंबर। आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी रंगनाथ नंदा। रंगनाथ नंदा जो स्वामी है, ही वॉज अ प्रोमिनेंट monk ऑफ रामकृष्ण ऑर्डर, रामकृष्ण मिशन, एंड वॉज अ डिसाइपल ऑफ स्वामी विवेकानंदा। तो स्वामी विवेकानंद हमारे लिए इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, he is an important figure for India. And this स्वामी रंगनाथ नंदा जो थे वो important spiritual teacher थे, and his teaching was based on Vedanta. He was serving as a 13th president of this रामकृष्ण मठ। तो रामकृष्ण मठ का जो ओरिजिन है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम देखें। देन रामकृष्ण स्वामी परमहंस जो थे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी, जो ही वॉज द गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंदा। नाउ ही प्लेड अ की रोल इन स्प्रेडिंग वेदांतिक फिलोसॉफी ग्लोबली थ्रू हिज लेक्चर्स एंड राइटिंग्स। तो इस पर्सपेक्टिव से आज का जो दिन है उनकी बर्थ एनिवर्सरी के टर्म्स में मनाया जाता है, और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द डिस्कशन पार्ट। आज के जो न्यूज़पेपर में हमें डिस्कस करना है, वेरी फ्यू आर्टिकल्स आर देयर विच आर very important for UPSC perspective, but still we are trying to do some of the articles. Like the first article which I am going to teach, or I am going to talk about, is this RBI's new provision regarding this collateral free agriculture loan. इसमें आरबीआई ने भी रिसेंटली क्या किया है कि जो लिमिट है उसको रेज किया है। द लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.6 लाख टू 2 लाख। एंड माइंड इट कि ये जो लिमिट जो रेज की गई है वो सिर्फ कोलेटरल फ्री लोन की लिमिट रेज की है। जो विद कोलेटरल जो लोन है उसकी कोई लिमिट नहीं है, बट कोलेटरल फ्री लोन जो है फार्मर्स को जो पहले दिया जाता था वो अप टू 1.6 लाख तक दिया जाता था। नाउ इट हैज बीन रेज टू 2 लाख। अब इसके प्रोविजंस क्या हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? I will show you. Here you can see in PIB also, there was an article regarding this. RBI increases this collateral free agriculture loan limit from 1.6 to 2 lakh. This is a significant move to support the agriculture sector and address the rising input cost. So first reason which is here is the rising input cost. उसके कारण collateral free loan की limit बढ़ाई गई है, so that the farmers will have enough finances to finance their input cost and also other costs related to agriculture. तो जैसे for example, the limit has been announced for agriculture loan, including loan for allied activities like horticulture and animal husbandry. The existing loan limit of 1.6 lakh जो था per borrower, वो अभी 2 लाख कर दिया गया है। Now the decision acknowledges, so it acknowledges the impact of inflation, rising price and increasing cost of agriculture inputs on farmers. It aims to provide enhanced financial access to farmers, ensuring they have sufficient resources to meet their operational and developmental needs. तो ये important है for agriculture sector, that they have sufficient resources to meet their operational as well as developmental needs. Operational needs are needs regarding the cost of inputs, cost of machineries and other running costs. But at the same time, developmental needs are the needs to develop the sector further. For example, if an farmer needs a warehouse, so he can build that warehouse. So that ultimately needs to improvement in development of overall sector, overall agriculture sector. So without the burden of providing collateral, so that is the important point. Now, कब से ये effective होगा? This will be effective from January 1st, 2024, 25, sorry. The banks across the country are instructed to waive collateral security and margin requirements for agriculture loan, including loan for allied activities up to 2 lakh per borrowers. ठीक है? Now, this implements the revised guidelines to ensure timely financial assistance to farming community. Banks are instructed to provide widespread publicity to these changes to ensure maximum outreach and awareness among farmers and stakeholders for their operational areas. This moves enhanced credit accessibility, ये important है. फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी जो फार्मर्स के लिए है, पर्टिकुलरली फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो ये जो डेफिनेशन है कि कौन है स्मॉल फार्मर्स, कौन मार्जिनल फार्मर्स, ये स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए। ओवर 86% ऑफ द सेक्टर
और 86% ऑफ द टोटल लैंड होल्डिंग इज स्मॉल एंड मार्जिनल। तो मैक्सिमम परसेंट ऑफ फार्मर्स इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स हम उनको बोलते हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर है, और 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जिसके पास लैंड होल्डिंग है उसको हम बोलते हैं स्मॉल फार्मर्स। और 2 हेक्टेयर से ऊपर होगी तो हम उसको मीडियम फार्मर्स में कंसिडर करेंगे। देन मोर देन 10 हेक्टेयर किसी के पास होल्डिंग है तो उसको हम लार्ज फार्मर्स में कंसिडर करते हैं। सो ज्यादा बेनिफिशियरी किसके पास, किसके लिए होगा ये, क्योंकि लोन की रिक्वायरमेंट किसके पास होती है, जिसके पास क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कम होती है। क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कम किसके पास होगी, जिसके पास लैंड होल्डिंग कम है, उसके पास इनकम सोर्स कम है। So particularly, this move will benefit the credit accessibility point, particularly for small and marginal farmers. So reduce borrowing cost. It will reduce borrowing cost at the same time removal of collateral requirements. By streamlined loan disbursement, the initiative is expected to increase the uptake of Kisan credit card loans. As you all know, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके थ्रू गवर्नमेंट कम इंटरेस्ट में फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करती है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी उनके लिए करती है, तो वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए रिगार्डिंग दी एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारी जो स्कीम्स हैं उस पर क्वेश्चंस बनते हैं यूपीएससी में। नाउ दिस इज अलाउइंग फार्मर्स टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन एंड improve their livelihood. Combined with the modified interest subvention scheme offering loan up to 3 lakh at a 4% effective interest rate. ये जो स्कीम है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो अप टू 3 लाख का लोन जो प्रोवाइड करता है विथ इंटरेस्ट सबवेंशन, जिसमें फॉर एग्जांपल इफ द इंटरेस्ट इज 7%, then government is providing 3% interest subvention on that particular loan, so that the effective rate of interest will be 4%। तो 4% का इंटरेस्ट पे आपको up to 3 लाख you will get the loan here अंडर द स्कीम ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड। उसमें भी एक जो सब स्कीम है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। तो दिस पॉलिसी strengthen the financial inclusion, as I have already discussed, then supports the agriculture sector, foster the credit driven economic growth, aligning with the government's long term vision for sustainable agriculture। एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल भी तभी किया जा सकता है जब द फार्मर्स विल हैव अ फंड्स। नाउ इफ वी सी दिस किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में जो इंटरेस्ट सबवेंशन वाली स्कीम है, जिसमें मैक्सिमम लिमिट लोन की क्या है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी में क्वेश्चन आता है और किसी पॉइंट में आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम लिमिट क्या होगी लोन की, देन यू विल हैव टू नो दिस पर्टिकुलर क्वांटम ऑफ एलिजिबल अमाउंट। फर्स्ट जो है फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, मैक्सिमम लिमिट लोन की जैसे हमने डिस्कस किया इस इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए है वो है 3 लाख। For allied activities related to animal husbandry, dairy, fishery, lake cultivation, mulberry cultivation, sericulture and beekeeping, etc. इनके लिए जो है लिमिट वो है 2 लाख की। एंड आपको कुछ न्यूज़ पे ध्यान रखना है कि इफ गवर्नमेंट इज एक्सटेंडिंग दिस पर्टिकुलर किसान क्रेडिट कार्ड टू अदर सेक्टर्स ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल फॉर फिशरीज, तो कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट ने बाद में स्टार्ट किया है गिविंग दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड। So you should know about this. Next thing which is important here is the benefit of MISS schemes. So it is available to banks only on their own funds involved for extending credit support up to 3 lakh at 7% interest per annum. As I have already discussed, the 7% interest rate पे ये लोन प्रोवाइड करना है, but with this interest subvention scheme, the loan would be at 4% effective interest rate. As you can see, the maximum limit here is 3 lakh. Now, moving on to the other articles. So, this was all about this article. Now, आज के जो न्यूज़पेपर है उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है नहीं, तो इसलिए स्टूडेंट्स को मैं कुछ सजेशन दूंगा कि इसमें से किस टाइप से हमें चीज़ें निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वर्ल्ड वाला जो पेज है, इस पे आपको देखना है कि हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट द लोकेशंस, क्योंकि लोकेशंस पे क्वेश्चन आता है। सो आई सजेस्ट यू टू प्लीज note down all the locations from this particular page and then go to your atlas and mark that location। करना कैसे है आपको, फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी साउथ कोरिया पार्लियामेंट इम्पीचेस प्रेसिडेंट ओवर मार्शल लॉ फियस्को। सो ये साउथ कोरिया की बात कर रहा है। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था जिसमें नॉर्थ एंड साउथ कोरिया की बाउंड्री की बात की थी, ऑप्शंस दिए थे कि विच हैज द लार्जेस्ट बाउंड्री, जिसमें यूएस कनाडा का ऑप्शन था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया ऑप्शन था। इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं जब आपको पता होना चाहिए कि विच आर द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ द दीज पर्टिकुलर लोकेशंस विच आर इन न्यूज। तो ये लोकेशन अभी न्यूज में है साउथ कोरिया, तो आपको इसको एटलस में जाके मार्क करना है।
देन उस पर रीड करना है और उसकी सराउंडिंग कंट्रीज और सराउंडिंग लोकेशंस को एक बार देखना है। सेकंड हम देखेंगे, इसराइल की बात कर रहा है आर्टिकल। इसराइल की सराउंडिंग कंट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसराइल वॉर चल रहा है तो काफी टाइम से इसराइल पैलेस्तीन के ऊपर आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो इसराइल की लोकेशन, उसकी सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज उसको टच करती है। देन अगेन गाजा, गाजा जो लोकेशन है, गाजा स्ट्रिप, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गाजा सिटी है, गाजा स्ट्रिप जो है उसको कौन कौन सी कंट्री सराउंड करती है, कौन सा सी है जो उसको टच करता है, और कौन कौन सी कंट्रीज में जो मेडिटेरेनियन सी को टच करता है या रेड सी को टच करता है। सिमिलरली जब लेबनान से इसका वॉर चल रहा है तो लेबनान से भी हमें देखना है कि लेबनान की सराउंडिंग कंट्रीज कौन सी है। अगेन सीरिया इज ऑल्सो इन न्यूज, क्योंकि सीरियन वॉर जो है वहां पर कुछ चेंजेस हुए हैं, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया है, तो सीरियन रेबल्स जो हैं उसके ऊपर काफी आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो सीरिया की लोकेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। हियर लीबिया इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सिमिलरली हमें लीबिया को देखना है, उसकी सारी लोकेशंस को देखना है, उसकी सराउंडिंग कंट्रीज को देखना है। यूक्रेन वॉर के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। लास्ट लास्ट ईयर क्वेश्चन था जिसमें यूक्रेन की सराउंडिंग कंट्रीज के ऑप्शंस दिए थे, कौन कौन सी कंट्री यूक्रेन को टच करती है। सो अगेन द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन सिमिलर पैटर्न विथ अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो यूक्रेन को भी हमें देखना है, यूक्रेन और रशिया का जो सराउंडिंग कंट्रीज है वो कौन कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर नॉर्थ सी के ऊपर क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था कि नॉर्थ सी को कौन कौन कंट्री टच करती है, इसमें रशिया भी एक ऑप्शन था। सो इफ यू नो कि रशिया कौन सी कंट्रीज को टच करता है, कौन से सी को टच करता है, सो यू कैन एलिमिनेट दैट पर्टिकुलर ऑप्शन एंड हमारा क्वेश्चन उससे बन जाएगा। तो ये लोकेशंस का डायरेक्टली कभी यूज नहीं होता बट इनडायरेक्टली हमको हेल्प करता है फॉर ऑप्शन एलिमिनेशन। तो इस टाइप से ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई टेक्नोलॉजी न्यूज में है, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी ऑफ ओपन एआई, ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है वो न्यूज में रहता है, तो चैट जीपीटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड पेज विच यू शुड नो एंड यू शुड लुक आउट फॉर दीज इंफॉर्मेशन एवरी डे। तो डेली के न्यूज़पेपर में आपको इसको देखना है। इकोनॉमिक पेज में कोई न्यूज़ आती है, आपको लग रहा है कि कोई पॉलिसी मेंशन है, कुछ है, तो आपको देखना है। यहाँ एनपीएस मेंशन है जो स्टैटिक का पार्ट है, बट अगेन यू शुड नो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और विच आर द कंट्रीज। ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टॉप 100 डिफॉल्टर्स अकाउंटेड फॉर 43% ऑफ टोटल एनपीएस ओवर 4 लाख करोड़ इन टोटल। तो दिस कैन बी नोट डाउन इन योर डाटा बुक और उससे हम इसको आंसर्स में यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन आईबीसी जो होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बारे में भी पढ़ना चाहिए। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है आज के न्यूज़पेपर में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ विद दिस आई थिंक आई विल एंड टुडे सेशन एंड विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू सो मच।